من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم. معزز نوجوان ساتھیوں اور سفید ریش بزرگوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جمعہ کے دن کی عظمت اور اس کی قدردانی کی دلیل یہی ہے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد کے اندر جلد تشریف لے آئیں، اللہ کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو مصروف کر لیں اور تسبیحات خوب کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ عز و جل سے دوستی کریں۔ مسجد میں نماز کا وقت ہو، اذان سے پہلے مسجد میں تشریف لے آئیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، اللہ عز و جل سے اپنے شکایتیں رکھیں۔ دروں میں بہترین در یہ اللہ عز و جل کا در ہے، جہاں ماتھا رگڑنے میں عزت ہے، جس سے مانگنے میں وقعت اور جس سے سوال کرنے میں ہماری سرفروشی ہے۔ دنیا کے کسی آدمی سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، چار لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ہماری باتیں کرے گا کہ فلاں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اس کی مدد کی۔ اللہ کا ایک ایسا در، ایک ایسا عظیم گھر اور اتنا وسیع قدرت والا مالک، ہم اس سے مانگیں گے تو وہ خوش ہوگا، اس سے نہیں مانگیں گے تو وہ ناراض ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا امیر نہیں ہے کہ وہ مانگنے پر خوش ہو، نہ مانگنے پر ناراض ہو، بلکہ دنیا کے لوگوں کا دستور، دنیا کے لوگوں کا قانون یہ ہے کہ وہ مانگنے کی بنیاد پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی امیر سے دوستی رکھتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سے جب تک آپ کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے تو وہ آپ سے خوش تعلقی کا اظہار کریں گے، آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، اچھی گفتگو آپ سے کریں گے۔ لیکن جہاں آپ نے کسی سے سوال کر لیا، اپنی مدد اس سے مانگ لی، وہ دنیا کا آدمی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ دنیا کا امیر آدمی جو آپ کا آج تک دوست تھا، اس کی خواہش یہ ہوگی یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اور جب اس سے دستے درازی کی جاتی ہے تو وہ چاہے اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بھائی سے کترانے لگتا ہے، باپ بیٹے سے کترانے لگتا ہے، دوست دوست سے کترانے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے سوال کرے گا۔ اللہ عز و جل کا گھر ایسا گھر ہے، اس کا در ایک ایسا در ہے، تم مانگو گے تو وہ خوش ہوگا، تم اس کے پاس چل کر جاؤ گے تو وہ دوڑ کر آئے گا، تم اس کو تنہائی میں یاد کرو گے تو وہ اپنے یہاں فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کرے گا، تمہارا ذکر کرے گا۔ اللہ کا یہ در ہے جس در کی طرف اللہ مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے، اور ایک دنیا کا در ہے کہ اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو ذلت اور رسوائی اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر آتے ہیں، اور اللہ کا گھر ہے کہ اگر اس گھر کی طرف نہیں آتے ہیں، اس کے در سے نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندے زمین و آسمان تو میری ہے، اور یہ آسمان میں نے سائمان کے طور پر تیرے لیے بنایا ہے، زمین میں نے تیرے لیے بنائی ہے، درخت میں نے تیرے لیے اگائے ہیں، یہ حشرات الارض تیرے لیے ہے، چرند پرند درد تیرے لیے ہے، ہر شے تیرے لیے اگائی ہے، اور ہر شے کا مالک میں ہوں، پیدا کرنے والی ذات میری ہے، مارنے والی ذات میری ہے، رزق دینے والی ذات میری ہے، عزت دینے والی ذات میری ہے، ذلت دینے والی ذات میری ہے، پیسہ دینے
کرتے ہیں تو پھر بندے تو کسی اور سے مانگ کر ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ تو کسی اور کے در پر جا کر ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ جب میں تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے عزت دوں گا، تجھے ذلت دوں گا، تو مجھ سے خفیہ طور پر مانگے گا، چپکے سے آ کر مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر مانگے گا، میں لوگوں کے درمیان تیرا رعب ڈال دوں گا، لوگوں کے درمیان میں تیری عزت کروں گا، لوگ تیرے درمیان تجھے لوگوں کے درمیان میں وقار دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ بندے میں نے تجھے رزق دیا ہے، بندے میں نے تجھے مال دیا ہے، بندے میں نے تجھے عزت دی ہے، تجھے شہرت دی ہے، اب تم تمام چیز کے باوجود میری نافرمانی کرتا ہے، میرے راستے سے عدول اختیار کرتا ہے، تو تیرے لیے میں دردناک عذاب دیے تیار بیٹھا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا پیدائش کا مقصد ہمیں سمجھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام سے روشناس فرما دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب ان تمام احکامات سے روشناس فرما دیا ہے، ہمیں ہماری تعلیم کے لیے قرآن دے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرما دیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اپنے نبی کے دامن کو پکڑ کر جنت والے راستے کو اختیار کر لوں، میں قرآن کو پکڑ کر اپنے لیے ہدایت کی کتاب اس کو تسلیم کر لوں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کے لیے راستے مقرر فرما دیے ہیں، لیکن انسان تجھے کیا ہوا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ انسان کیا ہوا؟ مال کی دولت نے تجھے کہاں لے کر ڈوبی ہے؟ تو قبرستان تک تو پہنچ گیا ہے، تیرے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اور اب بھی تو مال کے ہوس میں پڑا ہے، اب بھی تجھے مال متا یاد آ رہا ہے، ابھی تجھے تیری مال تجھے یاد آ رہا ہے، جبکہ یہ مال تجھ سے تیری نزا کے وقت چھین لیا جاتا ہے، تیرے مرنے پر تیری اولاد مار دیتی ہے، بوڑھے باپ پر لوگ مرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کبھی یہ بوڑھا مرتا ہے اس کی وراثت میرے نام پر لگتی ہے، یہ کب دنیا سے جائے اولاد یہ تمنا کرتی ہے، بہویں گھر کی یہ تمنا کرتی ہے، بوڑھے کا کب خاصہ یہاں سے بند ہوگا، کب اس کی ملکیت میں میرا زور چلنے لگ جائے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تو کہاں تک اس مال کی لالچ میں پڑا رہے گا، کہاں تک تو مال کماتا رہے گا، کس برد کا کہاں تک تو جائے گا؟ اللہ کی زمین کو تو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا، اللہ سے تو کہیں پر اختیار نہیں کر سکتا، پھر تجھے کیا ہوا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو قبرستان کی زیارت کر چکا ہے اور تجھے مال مال پکار رہا ہے، ہائے نفسی کہہ کر تو اپنے مال کو پکڑ رہا ہے، اپنے اولادوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے مال و متا کو دیکھ رہا ہے، شاید یہ مجھے عزت دیں گے، شاید یہ مجھے شہرت دیں گے، میرے کام میں آئیں گے۔ کبھی یہ نہ سوچنا نہ اولاد کوئی کام آئے گی، نہ تیرے پیسے تجھے کام آئیں گے۔ مشکات کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مرتا ہے، مومن مرتا ہے، تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ صالح اولاد وہ اس کے لیے ایثار ثواب کرتی ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے اگر وہ کوئی ایسا کار خیر فرمائے جس سے اس کے بعد اس کو ثواب ملتا ہو، تیسری بات یہ ہے وہ قرآن سیکھتا ہو اور وہ دوسروں کو سکھا کر چل جائے تو وہ جب تک پڑھنے والا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علاوازی کوئی چیز ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے، علاوازی ہمارے لیے کوئی فائدہ مفید نہیں ثابت ہوگی۔ جب ہمیں احکام سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، مسلم طریقے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے، پھر کیا ہوا کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کے دامن میں جا کر بیٹھ کر اپنی فلاح و بہبود کو تلاش کرتے ہیں، اپنی کامیابی وہاں تلاش کرتے
पैसे भी दिए थे, मार्केट में तुझे भेजा था, लेकिन तू सिर्फ घूमता रहा, तू वहाँ की औरतों को देखता रहा, वहाँ के लहू नहीं तू देखता रहा, और तू खाली झोला लेकर शाम मेरे घर आया है। तू निकल जा, मेरा मालिक ने 60 साल मुझे दिए हैं, 70 साल जिंदगी के लिए दिए हैं, और फरमा दिया है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। बंदे, मैंने तुझे जिंदगी का बेहतरीन कीमती सरमाया दिया है, मैंने तुझे जिंदगी का आला तरीन मैंने तुझे आंखें दी है, बोलने के लिए जुबान दी है, सोचने के लिए अक्ल सलीम दी है, महफूज करने के लिए कल्ब सलीम दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं, सारी सहूलत तेरे लिए है। तेरा हाथ टूट जाए, तू मार्केटों का पुलादाओं का चक्कर लगाता फिरे, तेरी नस्ल दिल की बुलंद हो जाए, तेरी सांसें उखड़ जाए, तू मर जाए, तेरे पैर टूट जाए, तू चल न सके, मेरी सारी सहूलत तुझे दिए है, फिर भी तूने मेरी इबादतें नहीं की, फिर भी तूने मेरे नबी को राजी न किया, फिर भी तूने मुझको राजी न किया, फिर भी उस कुरान को लेकर तूने जुस्तानों के अंदर सजा दिया। आज मजमे के अंदर बहुत सारे लोग वो हैं, रमजान कुरान खोला है, लोगों को पता नहीं है घर में कुरान है या नहीं है। आया मेरे अल्लाह ने कुरान इसलिए दिया था कि मैं और आप कुरान को जुस्तानों के अंदर सजाकर, उसको काबू के अंदर रखकर, उसको मौलवियों के हवाले कर देते कि तुम पढ़ते रहो और हम बीमारों पर तुम शिफा के लिए उसके ऊपर पढ़ के फूंकते रहो। भाइयों, कुरान इसलिए नहीं आया था, रसूल इसलिए नहीं आया था कि मैं और आप अपने रसूल की शरीयत को मजरूर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आशिक रसूल बनाए। आमीन तो बोल दो। ये मेरा आप लोग इतने बाहु हो गए, गुफ्तगू सुनने में कुछ पता ही नहीं कहाँ चल गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए, आशिक रसूल बनाए। इश्क रसूल से हमारे दिल सरशार हो, ये इश्क रसूल है। इश्क रसूल ये नहीं है कि मैं नारा लगाता फिरूं, मैं आशिक रसूल हूँ और नबी की सुन्नतों को तार तार करता फिरूं, नबी को गालियाँ देता फिरूं, मेरे सहाबा को गालियाँ देता फिरूं, और मैं लोगों के दरमियान ये कहूँ कि मैं आशिक रसूल हूँ। मैं आप हज़रात के सामने मीज़ान के तौर पर एक बात बताता हूँ। लोग बड़े इख्तिलाफ में पड़ते रहते हैं, यार समझ में नहीं आता है, गुलाम मौलवी बयान करके जाता है, ये कहते ना है ये चीज़ हलाल है, वो चीज़ हराम है। हम बिलाती भाइयों को सुनते हैं, उनको उलमा को सुनते हैं, वो कुछ बात कह देते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, हक कौन है ना हक कौन है। भाइयों, हम इतने भोले भी ना बने, इतने सियाने भी ना बने कि हमें हक का पता ना हो, हमें हक ना जानते हो। ये तो हमारी गफलतें हैं, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। अच्छे मुहर्रम दिखे, हम अपने ऊपर ऊंची टोपी पहन ली, अपनी औरतों को लेकर चले गए, यार ये भी दीन है, ये भी उनकी वहाँ मुआफ़क़त करते चलो। मेरी ख्वाहिश तो ये होती है कि मेरी औरत का चेहरा कोई न देखे, ये मेरी गैरत कहती है कि मेरी औरत का चेहरा कोई न देखे, मेरे घर वालों का कोई चेहरा न देखे। मेरी ख्वाहिश ये होती है मेरी बहन का चेहरा कोई न देखे, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती है कि गैर की नजर मेरे घर वालों पर पड़े, गैर की नजर मेरी बेटी पर पड़े, गैर की नजर मेरी माँ पर पड़े। क्या हो गया नौजवान को, अपनी औरतों को ले जाकर फिरते हैं, अपनी औरतों को दीदार कराते हैं। 70% नौजवान वो रहे, 100% नौजवान वो है जो औरतों को तारते हैं। खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, कोई इतने दिल के साफ नहीं है, कोई इतने दिल के धुले हुए नहीं है जो जवान औरतों को देखे, हसीन जमील औरतों को देखे और वो उनकी तरफ माइल न होते हो, वो उनकी तरफ झुकते न हो। ये औरतों को नीलाम कराते हैं बाजारों में जाकर, अपनी बहनों का चेहरा, अपनी औरतों का चेहरा दिखाते हैं। मैं ये कहता हूँ बड़ी सख्त बातें हैं, लेकिन खुदा की कसम बड़ी तकलीफ होती है जब लोगों की बहन बेटियों को देखते हैं वहाँ घूम रही है, बेपर्दगी के साथ घूम रही है, और कौम के दरिंदे उनको देख रहे हैं नजरें फाड़ फाड़ कर, और ये बहन के मुकद्दस उसको पामाल कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि तुम ऐसा काम न करो। भाई, अपनी माओ की हिफाजत करो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस का ख्याल करो। तुम किसी जायज नाजायज को छोड़ो, ये कहो मेरी बहन घर से न निकले बेपर्दा, मेरी माँ घर से बेपर्दा न निकले, मेरी औरत को अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए हलाल किया है, उसके चेहरे को देखना अल्लाह ने मेरे लिए हलाल किया है, गैर के लिए अल्लाह ने हलाल न किया है। अल्लाह ने हलाल मेरे लिए किया है, मैं देखूं। अब जब हमारे नौजवानों का पेट अपनी औरतों को भर भर के थक जाता है तो लेके गाड़ियों पर बिठा के लाते हैं और लोगों को कहते हैं देखो भाई अब तुम देखो, फिर तलाकें होती हैं, झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, तावीज़ें लेते फिरते हैं, झाड़ फूंक करवाते फिरते हैं। कहते हैं भाइयों ये मसला हो गया, और मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है, इख्तिलाफात हो गया। इख्तिलाफात क्यों ना होंगे जब हमने अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपनी घर की बहू को नीलाम कराकर खुद उनकी इज्जतों को महफूज न किया। तो इख्तिलाफात जहाँ सुन्नत जिस इलाके से
और जिस गांव से, जिस घर से सुन्नत खत्म होती है तो वहाँ बिदअत आ जाती है, और जहाँ बिदअत आती है तो जब सुन्नत उठती है तो इत्तिफाक उठ जाता है, और जब इत्तिफाक खत्म हो जाता है तो लोगों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मीज़ान दिया है। मीज़ान क्या दिया है? कुरान हमारा मीज़ान है, रसूल हमारा मीज़ान है। क्या है भाई? कुरान हमारा मीज़ान है। कुरान क्या है? हमारा मीज़ान है। रसूल हमारा क्या है? मीज़ान है। बोलो साथ, रसूल हमारा क्या है? मीज़ान है। कुरान हमारा मीज़ान है। और साथ बोलो, कुरान हमारा मीज़ान है, रसूल हमारा मीज़ान है। कुरान के ऊपर तोड़ेंगे, कुरान के ऊपर रखेंगे, रसूल के ऊपर रखेंगे, रसूल की बातों के ऊपर हमारी बातें रखेंगे, कुरान के ऊपर हमारी जिंदगी को रखेंगे। जो जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी वो जिंदगी राह रास्त वाली होगी, जो जिंदगी रसूल के मुताबिक होगी वो जिंदगी बिदातों खुराफात से दूर होगी। तो दो मीज़ान है, एक मीज़ान क्या है? कुरान है, एक मीज़ान क्या है? रसूल है। आलिम क्या कह रहा है? छोड़ो। उलमा क्या कह रहे हैं? छोड़ो। मुफ्ती क्या कह रहा है? छोड़ो। आओ कुरान को सुनो, कुरान क्या कह रहा है? रसूल क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान क्या कह रहा है? कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अब मीज़ान हमें मिल चुका है, बात वाज़ेह हो चुकी है। मैं अपने गांव के अंदर देखूंगा, मैं अपने घर के अंदर देखूंगा, जो बिदात और खुराफात में कर रहा हूँ, जो मामला में कर रहा हूँ, आया कुरान में उसका हुक्म है या नहीं? रसूल की जिंदगी में उसका हुक्म है या नहीं? सहाबा की जिंदगी में उसका हुक्म है या नहीं? मैंने कुरान को मीज़ान बना लिया, रसूल को मीज़ान बना लिया, हदीस को मीज़ान बना लिया। अब मेरे घर से बिदात का भी कला कमा होगा, मेरे घर से खुराफात का कला कमा होगा। क्यों? मैंने अपने घर में कुरान को देख लिया है, मैंने अपने हदीस रसूल के हदीस को देख लिया है। मेरे नबी ने फरमाया तुम ये काम न करना, ये काम न करना। मैं अपनी जिंदगी के अंदर देखूंगा, आया मेरी जिंदगी के अंदर वो काम है या नहीं है जिसको मेरे रसूल ने मना फरमाया था। मेरे रसूल ने जिस काम को मना फरमा दिया मैं उस काम को छोड़ दूंगा। मेरा मीज़ान कुरान बन चुका है, मैं कुरान को उठा कर देखूंगा, कुरान में मैं जो काम कर रहा हूँ, जो बिदात कर रहा हूँ, उसका हुक्म मौजूद है या नहीं है। जिसको मैं दीन का हिस्सा समझ कर रहा हूँ, जिसको मैं शरीयत का हिस्सा समझ कर रहा हूँ, मैं देखूंगा कुरान के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर वो कुरान के अंदर मौजूद नहीं होगा तो मैं उन तमाम चीजों को छोड़ दूंगा। तो छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, उन तमाम चीज को छोड़ देंगे जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो इंशाअल्लाह। छोड़ेंगे, ये नहीं कहते ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कहाँ तक गिनवाएंगे? हम ये कहेंगे जो कुरान कह रहा है वो करो। क्या करो? जो कुरान कह रहा है वो करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपना मीज़ान किसको बनाएंगे? कुरान को। अपना मीज़ान किसको बनाएंगे? हदीस को बनाएंगे। ये नहीं मशीन चेक करने की मशीन, चेक करने की मशीन, ये हमारी जिंदगी को कौन? कुरान और हदीस करेगा। हम कुरान के मुताबिक किसी से पूछेंगे आया कुरान के अंदर है या नहीं है? मेरे रसूल ने ये काम किया था, मेरे रसूल ने ये काम किया था, मेरे रसूल ने ऐसा किया था। हम पूछे उलमा से, जब वो कहे रसूल ने ऐसा न किया तो हजार लोग उस काम को कर रहे हैं। मेरी गैरत ये कहती है, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा जज्बा ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है मैं रसूल पर कुर्बान हो जाऊं, मैं कुरान पर कुर्बान हो जाऊं। सिर्फ कहने से, ये नारे लगाने से कि रसूल की हुर्मत पर कुर्बान हो जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया था तो बड़े लोग निकले थे तबूक के मैदान में, लेकिन रसूल के आगे जाने के बाद बड़े सारे लोग वापस तबूक के मैदान में, मैदान जंग में जाने से भिड़ गए थे। वो कौन लोग थे? वो मुनाफिक थे जो अपने आप में ये कहा करते थे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शैताई हैं, हम रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। लेकिन कुरान कहता है कि वो जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, जब रसूल के मजलिस में बैठते हैं तो अपने दिलों के अंदर निफाक लिए बैठते हैं। तो हम उन तमाम चीजों को छोड़ देंगे जिससे मेरा रसूल नाराज होता हो, मेरा नबी नाराज होता हो, मेरा खुदा नाराज होता हो। मैं और आप काम वही करेंगे जिससे मेरा रब और मेरा रसूल राजी हो। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत असल शफाअत ये है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ महशर हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, आ जाओ, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। हज़रत जिब्राइल फरमाएंगे सुहकन सुहकन, अल्लाह के नबी फरमाएंगे इनको आने दो, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल फरमाएंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे ये तो मेरी उम्मत है, इनको आने दो, इनको मैं जन्नत में ले जाऊंगा।
जाऊंगा। हजरत जिब्राइल फरमाएंगे अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम है, ये आपकी उम्मत तो है, लेकिन आपके जाने के बाद इन्होंने क्या किया है, अल्लाह के नबी आपके दीन को बदला है, आपके दीन में तहरीफ की है, आपके दीन को गलत तरीके से पेश किया है, गलत दीन के अंदर गलत बातें ईजाद की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हजरत जिब्राइल उनको हकाल देंगे कि अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत ही तो है, लेकिन आपकी उम्मत में से वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन को बदल कर रख दिया है, आपके दीन पर उस तरह चलाए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश से अगर मैं और आप महरूम हो गए, भाइयों इससे बड़ी कोई महरूमी नहीं और इससे बड़ी बदबख्ती कोई नहीं है। आज बेटे को बाप बेटे को घर से निकाल गए तो बेटे के चेहरे की रौनक बदल जाए कि बाप ने निकाला है, कहाँ जाएगा। मासूम बच्चे को जब माँ मारती है रोता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन वो जानता है कि हमारी माँ के अलावा है कौन, उसकी कायनात माँ हुआ करती है। मेरे और आपके लिए मेरे और आपकी सिफारिशी मेरे रसूल है। अगर मेरा कोई ऐसा अमल हो कि जिससे मेरे रसूल को तकलीफ पहुंच रही हो, मेरे अमाल मेरे नबी के सामने पेश किए जाते हैं, मेरे अमाल मेरे रसूल के पास पेश किए जाते हैं। अगर मेरे नबी को तकलीफ हो रही हो, अगर मेरे नबी को मैं सता रहा हूँ, यहाँ बैठकर मेरे नबी को तकलीफ पहुंच रही हो, तो भाइयों मैं और आप अगर मेरे रसूल की सिफारिश से महरूम रह गए तो याद रखिए ये कहना काफिरों के लिए नहीं हमारे लिए वजह होगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के हम मिट्टी में मिल जाते कि मेरे रसूल ने मेरी सिफारिश से मुझे महरूम कर दिया। इसलिए दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हौज़े कौसर पर हमें अपना जाम नसीब फरमाए। कहीं भाइयों ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी के कीमती सरमाया को खो बैठते और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएं। याद रखिए नौजवानों, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आपकी जिंदगी का कीमती सरमाया ये आप रसूलुल्लाह के दीन की शान के लिए लगाओ, अपने नबी की दीन की हिफाजत करो, अपने नबी की दीन की सियानत करो। जिस दीन को जो दीन मुझ तक आप तक पहुंचता है वो दीन बड़ा कीमती है, वो दीन बड़ा कीमती सरमाया है। अगर मैंने दीन को बर्बाद किया, मैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन को ढाने वाला हो जाऊंगा। मैं अगर कुरान को छोड़ने वाला हो गया, मैं अगर सुन्नत का तारीख हो गया, अगर मैं हराम खाने वाला हो गया, मैं कुसूर ब्याज खाने वाला हो गया, तो सोचिए भाइयों मेरे घर में तारीखें आएगी, मेरी औलादों में तारीखें आएगी। दीन को बर्बाद करने वाले हम हो जाएंगे, दीन को छोड़ने वाले हम हो जाएंगे, दीन को नीलाम करने वाले हम हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन जब मीज़ान रखेगा और वहां होगा वो मुदिअल किताब फतल मुशरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी यक़ूलु या वैलतना मा ली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि आप मुजरिमों को कल क़यामत के दिन देखेंगे, वहां वो ऐसा कहेंगे आई क्या हो गया, अहसाहा कि वजदु मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ना कल क़यामत के दिन हमारा रब किसी पर जुल्म करेगा, लेकिन लिखने वाले फरिश्ते सारे लिखकर हमारे लिए रजिस्टर लेकर तैयार हैं। वो मुदिअल किताबु फतरल मुशरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी यक़ूलु या वैलतना क्या हो गया, या वैलतना मा ली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। क्या हो गया, क्या हो गया, ज़र्रा बराबर गुनाह किया वो भी यहाँ मौजूद है। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी नेकी की, छोटा गुनाह किया, छोटी इबादत की, छोटी बुराई की, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते लिखने वालों ने लिखकर हमारे यहाँ रजिस्टर में हमारे यहाँ सामने पेश कर दिया है। अब हमारे यहाँ छुटकारे का कोई रास्ता नहीं है। और जब हाथों पर, पैरों पर, जुबान पर, जिस्म के हर आज़ा पर मोहर लगा दी जाएगी, ये सूद वाले हाथ अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन गाली देंगे। याद रखें बरोज़ महशर कोई किसी का ना होगा, बाप बेटे से नफरत करेगा, माँ बेटी से नफरत करेगी, हमारे जिस्म के आज़ा ये हमसे नफरत करेंगे, मोहर लगा दी जाएगी। जिना के जिस आले से जिना की हो वो खुदा के सामने हमारे खिलाफ गवाही देगा। इस हाथ से चोरी की है, यह हाथ कल क़यामत के दिन मेरे खिलाफ गवाही देगा। जुबान से झूठ बोला, गाली दी, ग़ीबत की, ये जुबान मेरे क़यामत के दिन मेरे खिलाफ हो जाएगी। इसलिए भाइयों अपनी जिंदगी को संवारे, अपनी जिंदगी का रुख बदले, अपने आप को जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लेस करें, जिक्रुल्लाह करें, अल्लाह का जिक्र करें, कसरत से जिक्र किया करें। अल्लाह तबारक व तआला जिक्र के जरिए दिल की दुनिया बदल दिया करती है। एक अल्लाह वाले की कहीं मजलिस लगी हुई थी तो अल्लाह वाले के सामने एक फलसफी आदमी आया और फलसफी को जब वो मुलाकात के लिए आया तो अल्लाह वाले ने कहा कि जिक्र में मशगूल हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करो। तो फलसफी कहने लगा कि अल्लाह का जिक्र करने से भी कोई फायदा है, अल्लाह अल्लाह नाम जुबान लेने से दिल में क्या असर पड़ता है।
नाम तो जात का हुआ करता है, नाम का असर नहीं हुआ करता है। मैं अगर कागज पर बर्फ बर्फ लिखता रहूं, कागज नहीं पिघलेगा, कागज पानी वाला नहीं होगा। मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, मेरा क्या फायदा होगा? अल्लाह वाले समझ गए कि ये फलसफी आदमी है, दिमाग की बत्ती घूम रही है। अल्लाह वाले ने कहा, जब उसको समझाया ना समझ आया तो कहा, गधे मेरी मजलिस से उठकर चले जा। उसके चेहरे के तेवर बदल गए। अल्लाह वाले ने कहा, तेरे चेहरे में तगय्युर क्यों हो गया? तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुझे गधा कहा, तेरे चेहरे के तेवर बदल गया। अल्फाज में तासीर कहाँ होती है? तू कोई गधा नहीं है, मेरे कहने से तुझे असर क्यों हुआ? तो वो कहा, हजरत आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। तो हजरत ने कहा, जब मैंने तुझे गधा कहा, एक जानवर का नाम मैंने तेरे ऊपर मंसूब कर दिया, तो तेरे चेहरे की रंगत बदल गई, तेरे दिल में मेरे खिलाफ बातें आ गई, तू अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह तेरे दिल को रोशन नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी के अंदर जिक्र की अहमियत रखें, अपने आप पर अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करते हुए अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया बकिया जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में लगाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझ गुनहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात अगर इससे मेरी जुबान से निकल गई हो जो आपकी शान के मुवाफिक ना हो तो माफी का खास तगार। अस्सलामु अलैकुम।